Good morning, student. In the chapter Sources of Energy, today we are going to learn tidal energy, wind energy, steam energy, and nuclear energy. So here we are starting our chapter session with the tidal energy. So what is tidal energy? Tidal energy is a form of hydropower which converts the energy obtained from tides into other useful energies, electricity. Okay, so tidal energy, we are tides that occurs in oceans or sea waters. So that high tides and low tides are used to produce hydropower. Hydro means water. It is another example of energy which produces in flowing water, okay, in the ocean or seas. So this energy is converted into electricity. Now, the tidal energy is the result of sun and moon's influence over the oceans. That that is in the full moon day or new moon day, there is a high tide in the ocean. So when the high tides occur, the water level increases in the ocean or seas. Then afterward, the water level goes down and we are having what? Low tide. So it is the gravitational tides occur due to the gravitational influence of sun and moons. The height difference between the low and high tide around 5 meter. Okay, so the height difference between the low and high tides give rise to tidal current in coastal areas which drive the turbines. So the basic thing that we can say about the tidal energy is that tidal energy is the another example of energy which produces in flowing water, is the use of high and low tides of the sea to produce electrical energy. ओके, सो टाइडल एनर्जी का यूज किसके लिए करते हैं? टाइडल मीन्स जो आपके ओशंस में लहरें आती हो ना, ऊंची लहरें आती, नीची लहरें आती, जो लहरें आती हैं उनका यूज हम किसके लिए करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, उसको हम बोलते हैं टाइडल एनर्जी. नाउ हाउ द टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसेस, ठीक है. नाउ सी हाउ द टाइडल एनर्जी प्रोड्यूसेस. To produce the tidal energy, dams are made at the mouth of sea base. At high tide, the level of water increases and water flows into the dam. Water flows into the from the sea, water flows into the dam, and this makes the turbine rotate. Okay. सो देखो क्या होता है, जब हाई टाइड्स होते हैं तो ये जो सी है, सी में क्या होता है, वाटर लेवल इंक्रीज हो जाता है. वाटर लेवल जब इंक्रीज होता है तो ये जो वाटर है वो कहाँ जाता है? आपके डैम में जाता है. जब वाटर डैम में जाता है तो यहाँ पे क्या लगा होता है? टरबाइन लगा होता है, और ये टरबाइन क्या होता है? रोटेट होता है. देन इन द सेम वे एट लो टाइड the water flows the water flows from the dam to the sea. Okay, when the low tide is there, then the water flows from dam. This is the collected water in the dam. So the water, जब high tides होती हैं तो water क्या होता है? डैम में कलेक्ट हो जाता है, ठीक है. और जब लो टाइड्स होती हैं तो ये जो कलेक्टेड वाटर है, जो डैम में कलेक्टेड है, ये क्या होता है? फिर आपके सी में जाता है. यहाँ पे जो आपका टर्बाइन लगा हुआ है, ये देन ये जो होता है अगेन क्या होता है? रोटेट होता है. एंड दिस वे इट प्रोड्यूस what? Tidal energy which converted into electrical energy. ठीक है. Now in India, the tidal energy is produced in Kutch in Gujarat and eastern border near the West Bengal. Then now the wind energy. You all have seen this one, wind energy. So you must have seen that wind energy. Wind energy is what?
Flowing wind is also a source of energy which is called wind energy. हवा से, बहती हुई हवा से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसको हम क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी. The direction and the speed of wind varies from place to place. हर जगह एक जैसे हवा नहीं चलती है, ठीक है? तो हर जगह हवा का डायरेक्शन और स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है ना? And from time to time, but at some places the direction and speed remain constant like the land space. So see here, this is the how the विंड मिल वर्क है ना. आप लोगों ने प्रोजेक्ट में बनाया भी हो, कई लोगों ने विंड मिल कैसे काम करता है. सो यहाँ पे क्या होता है? ब्लेड्स लगे होते हैं, देखो है ना. ब्लेड्स कैच द विंड एंड स्पिन. जैसे हवा जब चलती है तो ये जो ब्लेड्स है ये क्या होते हैं? स्पिन, लाइक अ स्पिनर है ना, बिल्कुल ऐसे ये घूमते हैं जब हवा चलती है, ठीक है. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस साइड में ये विंड मिल के बैक साइड में यहाँ पे ये जो दिख रहा है यहाँ पे जनरेटर, यहाँ पे क्या लगा होता है? जनरेटर है ना. सो जनरेटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? ये जो विंड मिल घूम रहा है, इसके जो ब्लेड्स घूम रहे हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है दैट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी. और ये जो जनरेटर है ना, ये जनरेटर क्या करेगा? ये जो मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक. अब यहाँ पे इसके इंटरनल अगर आप देखोगे तो यहाँ क्या लगा होता है? केबल. क्या लगा होता है? केबल कैरीज इलेक्ट्रिक. एक वायर लगा होता है, यहाँ से कनेक्टेड होता है. इस जनरेटर से यहाँ पे केबल कनेक्टेड होता है. सो केबल कैरीज इलेक्ट्रिसिटी टू ट्रांसमिशन लाइन. तो ये यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, फिर से बताया, देखो ये ब्लेड जब हवा चलती है ना, तो ये ब्लेड क्या करता है? स्पिन, घूमता है. तो यहाँ पे जो जनरेटर है वो इसकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. इससे क्या कनेक्टेड होता है? आपके केबल. तो ये जो केबल है वो क्या करता है? इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, ठीक. यहाँ पे क्या होता है? आपका कंप्यूटर सिस्टम. कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल द डायरेक्शन ऑफ ब्लेड्स. ये जो कंप्यूटर सिस्टम है इससे हम क्या करते हैं? इस ब्लेड के डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है. एंड सी इन इंडिया में कहाँ कहाँ पे आपकी विंड फार्म्स है जहाँ पे विंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड मध्य प्रदेश. Now the steam energy. Steam energy, you have seen the steam engine and steamer that runs because of which energy? Steam energy है ना. steam energy से चलते देखे होगे ना इंजन. पहले के इंजन किससे चलते थे? भाप से, स्टीम से चलते थे. और आपके जो स्टीमर से बड़े बड़े जो बोर्ड वो भी किससे चलते थे? आपके स्टीम से चलते थे. सो अब देखो यहाँ पे इन steam, to produce the steam energy, a special plant which are called boiler. ये क्या है? plants, boiler है ना, boilers. So called boilers. Water is heated and by burning coal. Water is heated by burning coal. यहाँ पे boilers में क्या करते हैं? water को heat boil करते हैं, है ना, किससे? coal से. Then steam is produced, है ना. तो क्या प्रोड्यूस होता है? जब वाटर गर्म होगा, जब वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? स्टीम, है ना. द पावर ऑफ द स्टीम टर्न्स द टर्बाइन एंड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय द जनरेटर अटैच्ड टू इट. तो यहाँ पे जो बॉयलर होता है, जब पानी गर्म होता है, वहां पे आपका एक क्या लगा होता है? आपका जनरेटर. वो जनरेटर क्या करता है? स्टीम एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है. एंड दिस इज कॉल्ड थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट. इसको क्या बोलते हैं? थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट. इन अवर स्टेट छत्तीसगढ़, थर्मो इलेक्ट्रिकल प्लांट इज इन कोरबा डिस्ट्रिक्ट. छत्तीसगढ़ में कहाँ पर है थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट? कहाँ पे? स्टीम वाला कोरबा डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है. चलो एक वीडियो देखो आप, छोटा सा, सी दिस वीडियो, then you will understand how the steam energy produces. ये आपका एक वर्किंग मॉडल है कैसे स्टीम एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है. वाटर बॉईल होगा, जब वाटर बॉईल होगा तो इसमें से क्या प्रोड्यूस होगा? आपकी स्टीम. और ड्यू टू दैट स्टीम ये जो फैन है क्या होगा? आपका रोटेट होगा एंड बल्ब लाइट अप होगा. देखो यहाँ से ये आपका बीच में क्या वाटर है ना, ये वाटर बॉईल हो रहा है. जब वाटर बॉईल हो रहा है तो यहाँ से क्या निकल है? आपकी स्टीम प्रोड्यूस हो रही है. एंड ड्यू टू दैट स्टीम ये जो फैन है ये क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है. एंड दिस बल्ब इज लाइटेड. सो यहाँ पे आपकी स्टीम एनर्जी से ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है. और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से आपका ये जो बल्ब है वो क्या हो रहा है? लाइट अप हो रहा है.
Then now the next is nuclear energy. Nuclear energy, one more source to obtain energy has been developed. We know that the mass of an atom, देखो हम हर चीज दुनिया में जो भी चीज बनी हो किससे बनी है एटम से. इवन हमारी बॉडी में भी क्या है एटम है ना. सो एटम इज अ सेंटर्ड इन द that mass of an atom is centered in its nucleus. मतलब जो एक एटम है उसका पूरा मास वेट कहाँ पे होता है उसके सेंटर पे, और उसके सेंटर को हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियस बोलते हैं. ठीक है. एंड मोस्ट ऑफ द एनर्जी इन द न्यूक्लियस, तो इसकी एटम की पूरी मोस्ट ऑफ एनर्जी कहाँ पे होती है उसके सेंटर न्यूक्लियस पे होती है. When some heavy atom as uranium is broken into smaller atom, आपका ये जो heavy atom है यूरेनियम, जब ये ब्रोक होता है किसमें स्मॉलर एटम्स में. ठीक है. जब ये स्मॉलर एटम्स में से ब्रोक होता है तो लॉट्स ऑफ इट प्रोड्यूसेस लॉट्स ऑफ हीट. इससे बहुत ज्यादा अमाउंट में क्या प्रोड्यूस होती है हीट प्रोड्यूस होती है. ठीक है. एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिशन. क्या बोलते हैं इसको फिशन. and the energy produced is called the nuclear energy. से जो energy produce हो रही है that is called nuclear energy. से nuclear energy बनती है और उसके बाद जो waste बनता है उसे seal कर दिया जाता है, उसको destroy कर देते हैं. ठीक है. and this nuclear energy is produces in a special plant called nuclear reactor. क्या बोलते हैं इसको nuclear reactor. and nuclear energy is converted into electrical energy. In our country, nuclear reactors are working at Tarapur, Kalpakam, Kota and Narora. ठीक है. And about 100 kilometers away from Mumbai, the nuclear energy plant at Tarapur is India's completely native nuclear reactor. So now today we have finished about these energies, and the next we will learn in our next class. Okay, thank you.